Hello, good evening. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last class, we were discussing about threshold logic. And we have discussed about threshold element, threshold function, and some properties of threshold elements. We have seen that each threshold element is associated with one weight threshold vector. The elements of weight threshold vectors are weights associated with the inputs and T, that is threshold. Weights and threshold, they can be any finite real number. Okay. And today we'll discuss how to synthesize, how to synthesis of threshold functions. So before that, we'll discuss some definitions, simple definitions which will be required for this discussion. So first one is that consider one n variable Boolean function. X function of x1, x2, xi, xn. So this is one n variable switching function. Now we'll call the function is positive in xi, positive in one of its variables, suppose ith variable xi. Positive in function will be positive in xi if there exists a Boolean expression for the function, either in sum of product form or in product of sum form, such that xi variable will appear in that function only in uncomplemented form. Okay, so positive xi means the xi variable will appear only in uncomplemented form in the Boolean expression, and the Boolean expression may be in sum of product form or product of sub form. For example, if you consider the function, suppose f equal to x1, x2 plus suppose x2, x3. So this function, we can say that f is positive in x1, positive in x1, because in this expression x1 appears only in uncomplemented form. There is no mixture that x1 bar उस type का नहीं है ना? So this is positive in x1. In fact, this function is positive in x2 also, because x2 variable, it also appears only in uncomplemented form. This function is positive in x3 also, because x3 appears in this expression only in uncomplemented form. So we can say this function f is positive in x1, positive in x2, as well as positive in x3. Let us take another example. F equal to suppose x1, x2 plus x2 bar x3. Okay, now this function you see, okay, this is positive in x1 because x1 appears only in uncomplemented form. x2 का देखिए mixture है, it appears in both complemented form as well as uncomplemented form. So we cannot say anything about x2. So we can simply say from this expression that this is positive in x1 and positive in x3. Okay. Let us take another example. F equal to suppose x1, x2 plus
suppose x1 x2 bar plus x2 x3. So from this expression it appears that it is positive in x1, it is positive in x3, but x2 का देखिए कि ये मिक्सचर है, but there exists one expression in which x2 will appear only in uncomplementary. You see that if we take x1 common from these first two terms, it will be simply reduced to x1. So this will be reduced to this expression, x1 plus x2 plus x3. So from here you see from this expression that the function is positive in x1, positive in x2, as well as positive in x3. So the definition is that if there exists an expression either in sum of product form or product of sub form in which the variable appears only in uncomplemented form, then we call that the function is positive in that variable, है ना? तो यहाँ पर क्या है कि फंक्शन को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और we have to search for an expression in which the variable appears only in one form, either in अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, है ना? तो देखिए यहाँ पे जो पहला एक्सप्रेशन है, यहाँ पे तो मिक्स्ड है, x1 appears in both the forms, but after simplification you see that x1 plus x2 x3, here x2 appears only in uncomplemented form, so this function is positive in x2 also. ठीक है? Similarly we can define negative in xi. The function is negative in xi. In this case, the variable xi should appear only in complemented form. ठीक है? So if there exists the definition of a negative in xi, the function is said to be negative in one of its variable xi. If there exists at least one expression, at least one, सारे होने का जरूरत नहीं, at least one expression either in sum of product form or product of sum form in which the variable xi will appear only in complemented form, then the function will be negative in xi. For example, suppose f equal to x1 plus x2, है ना? फिर मान लीजिए x1 plus x3 bar. So this function is positive in x1, positive in x2, but negative in x3. You see that x1 appears only in uncomplemented form, so this is positive in x1. In this expression, x2 appears only in uncomplemented form, so the function is positive in x2, but the variable x3, it appears only in complemented form, x3 bar, so the function is negative in x3. ठीक है? So ये है definition, positive in xi, negative in xi. एक क्लियर है? हेलो, एक क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. आप लोग बीच बीच में सब बोलिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आप लोग है कि रास्ते में घूम रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, we'll define unit function, UNAT. ये डेफिनेशन काम में आएगा, ये सब आपको थोड़ा देखिए ठीक से सुनिए.
Unit function is that the function is either positive in xi, if the Boolean function is either positive in xi or negative in xi. Xi for all I. For all I. Then the function will be unit function. The n variable function f x1, x2, है ना, xi up to xn. So if the function is either positive in xi or negative in xi, and it should be true for all I, that means ये जो function है, it should be either positive in x1 or negative in x1, positive in x2 or negative in x2, positive in x3 or negative in x3, and so on. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, f इक्वल टू मान लीजिए एक्सप्रेशन है x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3. So this function is positive in x1 because x1 appears only in uncomplemented form, है ना, positive in x2, positive in x3. So it is positive in xi for all I. It has three variables x1, x2, and x3. So this function is unit function. This is one unit function. Let us take another example. Suppose you have x1, x2 plus x1, x3 bar. So this function is positive in x1, positive in x2, but negative in x3. है ना? So this is also unit function. The function should be either positive or negative in the variable. है ना? वो mixed नहीं होना चाहिए. So this is unit function. समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं. Suppose f equal to x1, x2 bar plus x2, x3 bar. So this function is positive in x1, ठीक है, negative in x3, but not unit in x2. x2 appears in both the forms, है ना. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस टाइप कोई एक्सप्रेशन आपको नहीं मिलेगा. That will not exist any expression in which x2 will appear in one form, either complement or uncomplement. ये possible नहीं है. इसको आप चेक कर सकते हैं. So this is not unit function. This function is not unit. ठीक है. तो यूनिट फंक्शन मतलब क्या है कि इन ईच ऑफ इट्स वेरिएबल्स वो आइदर पॉजिटिव इन पॉजिटिव होना पड़ेगा या नेगेटिव होना पड़ेगा. मतलब द there should exist one if there exists one expression for the function either in SOP form, sum of product form, or product of sum forms, in which the variables should appear only in one form. मतलब अगर कॉम्प्लीमेंटेड है तो पूरा कॉम्प्लीमेंटेड ही रहे, अनकॉम्प्लीमेंटेड तो अनकॉम्प्लीमेंटेड ही रहे, है ना. देन द फंक्शन विल बी यूनिट फंक्शन. ठीक है, ओके. इसके बाद देखिए थोड़ा ठीक से देखिए. चलिए एक इसको देखिए, एक एग्जांपल. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. f इक्वल टू x1 बार x2
प्लस x1 x2 x3 बार। ठीक है, आपको बताना है कि ये यूनिट फंक्शन है कि नहीं। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन वेदर दिस फंक्शन इज यूनिट। डिटरमाइन वेदर f is the boolean function f is unit or not। इसको बताइए। डिटरमाइन तो ठीक से नहीं लिखा गया, whether this function f is unit or not। इसको आप लोग थोड़ा करके बताइए हमको। हाँ बताइए, कर रहा है कि नहीं। हेलो, एम आई ऑडिबल। यस सर। एक क्वेश्चन समझ में आया। सर इसको कुछ नहीं करना है, केमेप से सिंप्लीफाई करिए और देखिए कि देखिए जो दिया हुआ है इसमें क्या है कि x1 appears in both the forms, x1 bar and x1 कॉम्प्लीमेंटेड भी है अनकॉम्प्लीमेंटेड भी है। x2 तो ठीक है, ओनली इन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। x3 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। अब x1 मिक्सचर है, तो क्या इसमें से कोई एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। आप सम ऑफ प्रोडक्ट ही पहले ट्राई करिए कि जिसमें जो एक ही टाइप का हो जाए, मिक्सचर ना रहे, आइदर आइदर पॉजिटिव इन xi और नेगेटिव इन xi। तो इस फंक्शन को केमे में प्लॉट करिए, तो सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाइड वर्जन को, सिंप्लीफाइड फॉर्म को लिखने की कोशिश करिए। मतलब इमीडिएट आप कंक्लूड मत करिए कि इन्वेट है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है, आपको दूसरा जो फॉर्म है पॉसिबल फॉर्म वो भी देखना है, क्योंकि डेफिनेशन इफ द एग्जिस्ट एन एक्सप्रेशन, अगर एक भी एक्सप्रेशन है तो यूनिट हो जाएगा, है ना। तो हमको इसलिए सारे फॉर्म, हो सकता है अपरेंटली जो फॉर्म दिया गया उसमें से दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो अल्टरनेट जो फॉर्म है उसको भी देखना है। तो बेस्ट वे है कि केएमएफ से उसको सिंप्लीफाई करिए। केएमएफ में फंक्शन को प्लॉट करके सिंप्लीफाई करिए, आपको देखिए अल्टरनेट एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसमें यूनिट हो जाएगा।
और आप लोगों को गेट एग्जाम कैसे रहा आज? पेपर टफ था कि इजी था, मीडियम? इसको केएमएफ से सिंप्लीफाई कर लीजिए और इसका एक्सप्रेशन जो आएगा ना ये इस टाइप का आएगा, देखिए x1 बार x2 इट कैन बी रिटन एज x1 बार x2 प्लस x2 x3 बार, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको कर लीजिए, कोई इजी चीज है कि मैं आप लोग किए होंगे। नाउ इन दिस एक्सप्रेशन, this function is, from this expression you can say that the function is negative in x1 because x1 appears only in complemented form, that is x1 bar, है ना? अब देखिए कोई मिक्सचर नहीं है, only x1 bar है, there is no x1 in this expression, so this is negative in x1. the function is positive in x2, देखिए यहाँ पे x2 और x2 complemented form में x2 नहीं है, only in uncomplemented form, so the function is positive in x2 and function is negative in x3. So we can say that this function is either positive in xi or negative in xi for all I equal to 1 to 3. ठीक है ना? So the function is unit function. तो ये एक्सरसाइज तो करना है कि और भी फॉर्म को भी हमको देखना है, जस्ट सिंपली जो फंक्शन दिया उसको देख के करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक प्रॉपर्टी थ्रेशोल्ड, एक्चुअली हम लोग का पर्पस है टू आइडेंटिफाई whether the given function is threshold function or not. थ्रेशोल्ड फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन हम लोग ये करेंगे, ठीक है ना? थ्रेशोल्ड फंक्शन, और थ्रेशोल्ड फंक्शन मींस दिस फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड यूजिंग सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट। थ्रेशोल्ड, तो हम लोग जो प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फंक्शन, आपको एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि whether it can be realized using single threshold function or not. That is, the function is using single threshold element or not. That means that we wish to, problem क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है whether the function, whether a switching function or boolean function is threshold function or not. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थ्रेशोल्ड फंक्शन का ये है, एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इज यूनिट। एवरी थ्रेशोल्ड, इसको लिख लीजिए, एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इज यूनिट फंक्शन। एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ भी है किताब में, हम प्रूफ को अभी नहीं बता रहे, जस्ट इसको याद रखिए, अभी उसको प्रूफ भी इजी है। तो कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर मान लीजिए यूनिट नहीं है तो इमीडिएटली आप बता सकते हैं फंक्शन थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं है। अगर यूनिट है तो और भी टेस्ट करना है, मतलब उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि वो फंक्शन थ्रेशोल्ड फंक्शन है ना? तो एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इज यूनिट, बट इसका रिवर्स जो है दैट इज नॉट ट्रू, दैट एवरी यूनिट फंक्शन इज थ्रेशोल्ड नहीं है। ठीक है, एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इज यूनिट बट ऑल यूनिट फंक्शंस आर नॉट थ्रेशोल्ड फंक्शंस। Every threshold function is unit, but every unit function may not be threshold function. स्टेटमेंट को लिखिए, every threshold function is unit function, but every unit function may not be threshold function. ठीक है, तो एक फंक्शन मान लीजिए दिया गया है और वो यूनिट फंक्शन नहीं है, तो इमीडिएटली हम बता सकते हैं ये फंक्शन थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं है, मतलब दैट फंक्शन कैन नॉट बी रियलाइज्ड यूजिंग सिंगल थ्रेशोल्ड एलिमेंट। अगर यूनिट है तो फर्दर टेस्ट इज रिक्वायर्ड, वो टेस्ट क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इट मे और मे नॉट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यूनिट अगर नहीं है, यूनिट फंक्शन नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट थ्रेशोल्ड फंक्शन। अगर यूनिट फंक्शन है, इट मे और मे नॉट बी थ्रेशोल्ड फंक्शन। ठीक है, तो
इसको हम डिस्कस करते उसके बाद। तो एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इन यूनिट एक्चुअली ओनली थ्रेशोल्ड फंक्शन का नेसेसरी कंडीशन है, मतलब मिनिमम उसको यूनिट होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो एक नेसेसरी कंडीशन हो गया। अब हम बताएंगे व्हाट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बुलियन फंक्शन टू बी थ्रेशोल्ड फंक्शन। तो वो मैं लिख रहा हूं। ये है, हाँ, a function will be threshold function if and only these two conditions are satisfied. पहला कंडीशन है कि the function should be unit, ठीक है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन को मैं लिख रहा हूं, इसका डिस्कस भी करूंगा। लीनियर, द फंक्शन शुड बी लीनियरली सेपरेबल। ये क्या चीजें हम बता रहे हैं, ठीक है। If the function satisfies these two conditions, then only the function will be threshold function. So every threshold function should be unit and linearly separable. If the Boolean function is unit function and linearly separable, then the function will be threshold function. ये है इसका थ्रेशोल्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करने का तरीका। पहला है कि चेक करना है यूनिट है कि नहीं। अगर यूनिट फंक्शन है तो फिर चेक करना है whether it is linearly separable है कि नहीं। If both conditions are satisfied, unit as well as linearly separable, then the function will be threshold function. तो यूनिट फंक्शन कैसे चेक करते हो, तो आपने देखा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, है ना, कि द फंक्शन शुड बी आइदर पॉजिटिव इन xi और नेगेटिव इन xi फॉर ऑल i। अब लीनियरली सेपरेबल कैसे चेक करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लीनियरली सेपरेबल चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस पहले पॉजिटिव फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। मतलब द फंक्शन इज पॉजिटिव इन ऑल ऑफ इट्स, पॉजिटिव इन xi फॉर ऑल i। हम इस फंक्शन को पहले पिकअप करते हैं। हालांकि ये डिस्कशन बाकी फंक्शंस के लिए भी लागू हो जाएगा, है ना। थोड़ा कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस कंसीडर the functions we will discuss positive in xi functions for all I, positive xi for all I, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है, पॉजिटिव इन ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स। इस टाइप का फंक्शन के लिए पहले हम डिस्कस करेंगे। और लीनियरली सेपरेबल को ठीक से समझने के लिए हमको फंक्शंस का जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं पहले, ठीक है। और इसको थोड़ा सुनिए, geometric interpretation of positive functions। पॉजिटिव फंक्शंस का पहले बात करते, फिर बताएंगे कि हाउ टू अप्लाई इट फॉर एनी काइंड ऑफ यूनिट फंक्शन। तो पहले पॉजिटिव का देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमको ये करना है, मतलब ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में बात करना है, तो तीन वेरिएबल का एक फंक्शन लेते हैं। तो x1, x2, x3। अब इसमें मीन टर्म कितना होगा, हाउ मेनी मीन टर्म्स आर देयर इन थ्री वेरिएबल फंक्शन, 2 to the power 3, 8 मीन टर्म्स। n वेरिएबल्स में 2 to the power n, है ना। तो बेसिकली each boolean function can be represented by n cube, n वेरिएबल के लिए n क्यूब, और 3 वेरिएबल तो सिंपली क्यूब। और जो मिन टर्म है 0 0 0 0 0 1 0 1 0, दीज मिन टर्म्स एक्चुअली जो क्यूब का वर्टेक्स एक एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ थ्री वेरिएबल फंक्शंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए क्यूब, और क्यूब का जो वर्टेक्स होगा वो एक एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा।
तो 8 क्यूब का कितना वर्टेक्स होता है? 8 वर्टेक्स होते हैं, है ना। और ईच वर्टेक्स रिप्रेजेंट्स वन मीन टर्म। तो क्यूब को पहले हम ड्रा करने का कोशिश करते हैं, कितना कर पाएंगे पता नहीं, क्यूब ड्रा हमसे होता नहीं ठीक से। तो देखिए, ये मान लीजिए एक वर्टेक्स है 0 0 0, ठीक है। और एक वर्टेक्स मान लीजिए यहाँ पे है 0 0 1। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर, मतलब पहला जो है x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x1, x2, x3, इस ऑर्डर में लिखा गया है। और ये दोनों में देखिए एक वेरिएबल का डिफरेंस है, x1 x2 दोनों 0 है ना। ये दोनों वर्टेक्स को कंपेयर करिए, ओनली x3 डिफर्स 0 1। अगर सिंगल वेरिएबल का डिफरेंस है तो उसमें आप लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये वर्टेक्स मान ये हो गया 0 1, एक वेरिएबल x2 में देखिए डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 0 1 1, तो एक लाइन, क्योंकि सिंगल वेरिएबल डिफरेंस है, और एक लाइन है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ए 1 1 1, ठीक है, इसको भी आप लाइन खींच दीजिए। ये जो वर्टेक्स हुआ ये हो जाएगा आपका 1 0 1। फिर यहाँ पे एक ये हो जाएगा 1 1 0। फिर यहाँ पर भी एक ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 0 0। फिर देखिए ऐड कर दीजिए, क्योंकि सिंगल वेरिएबल चेंज है दोनों में, ये दोनों में भी सिंगल वेरिएबल चेंज, ये दोनों में भी सिंगल वेरिएबल चेंज, ये दोनों में भी सिंगल वेरिएबल चेंज, ठीक है। तो ये क्यूब बन गया, ठीक है। तो ये है, तो एक फंक्शन को, जैसे मान लीजिए फंक्शन एक मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है ए इक्वल टू x1 बार y1, x बार y बार, सॉरी एक मिनट, यहाँ तो y नहीं, एक मिनट, x x1 बार x2 बार। तो देखिए x1 x2 0 कहाँ पर है? ये देखिए x1 x2 यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है x1 बार x2 बार। x1 बार x2 बार मतलब ये लाइन हो गया। जैसे मान लीजिए x1 बार x2 बार प्लस, मान लीजिए एक और टर्म है, मान लीजिए x1 x3। तो x1 x3 देखिए, मतलब x1 1 होना चाहिए और x3 1 होना चाहिए, मतलब 1 0 1, एक तो ये हो गया, ठीक है। और x1, हाँ x1 1, हाँ। तो 1 1, ठीक है, 1 1 1 कहाँ, यह है, हाँ। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये आपका x1 x3 को रिप्रेजेंट करता है, x1 x3 को। तो इस तरह से यूजिंग ए क्यूब यू कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन, 3 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। अब ये जो क्यूब है इसका प्रॉपर्टीज देखिए, जो बुलियन फंक्शन का है, यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग पॉजिटिव फंक्शन, ये याद रखिए।
positive function. Positive function is positive in all of its variables. So in case of positive function, what happens? Suppose consider two vertices. एक vertex मान लीजिए A2, A1, A0. Here A0 and A0, A1, A2 they can assume Boolean function. मतलब ये हो सकता है 1 0 0 या 0 1 0 जैसे भी है. और एक vertex मान लीजिए B2, B1, B0. तो हम लोग ये कहेंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस. इसको कहते हैं पार्शियल ऑर्डरिंग. इसका मतलब क्या है? देखिए, तो आप सुनिए, नहीं तो नहीं होगा. इसका मतलब ये है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है, इसको पार्शियल ऑर्डर का ग्रेटर देन है. तो इफ इसका मतलब ये हो कि A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2, A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B1 एंड A0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B0. अगर ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाते हैं, देन वी दिस पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन इज ट्रू. ठीक है. फॉर एग्जांपल 1 1 0, हम ये लिख सकते दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 0, क्योंकि यहाँ पे जो पहला एलिमेंट 1 इज ग्रेटर देन 0. सेकंड जो लेफ्ट हैंड साइड का 1 इज इक्वल टू 1. थर्ड वाला 0, इधर का भी थर्ड एलिमेंट 0 है ना. तो क्या हुआ, वो रिलेशन है जो तीनों कंडीशन A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2, A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B1, A0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B0, एक तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो क्या है कि दिस रिलेशन इज ट्रू. ठीक है. लेकिन मान लीजिए ये है 1, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मान लीजिए 0 1 0. एक ट्रू है, एक ट्रू नहीं है. यहाँ पे देखिए A2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू B2 हो तो ठीक है, लेकिन A1 इज नॉट ग्रेटर देन, A1 इज इनफैक्ट लेस देन B1, है ना. तो ये पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन ये गलत हो गया. सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रू. ठीक है. एग्जैक्टली सिमिलर मैंने लेस देन इक्वल टू भी डिफाइन कर सकते हैं कि A2 लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि A2 A1 A0 will be less than equal to B2 B1 B0 if and only if A2 is less than equal to B2, A1 is less than equal to B1, A0 is less than, just greater than equal to less than equal to से रिप्लेस कर दीजिए. ठीक है. तो ए पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन एक कहा जाता है ए. ठीक है. आप लोग कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं आ रहा है तो पूछिए. अभी तक जो डिस्कस किया, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. हेलो. Yes, sir. कुछ डाउट है तो पूछिए. No, sir. हम्म. तो आगे बढ़ो. Yes, sir. ठीक है. डाउट है तो पूछिए, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे अभी. अच्छा ठीक है, चलिए. और आप लोग को जो मटेरियल जो हमने एक PDF फाइल दिया ना, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको. ये सारी चीज वहां पर भी है, बट यू टू रीड इट. वो पढ़ने में आसानी हो, ये सब सुन लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं.
ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो लिखा हुआ है, हम लोग पॉजिटिव फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। और मान लीजिए ये पॉजिटिव फंक्शन के लिए ट्रू है। कंसीडर टू वर्टिसेस A2, A1, A0, and this partial ordering, this relation is supposed to। तो बेसिकली क्या एक वर्टेक्स है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में एक वर्टेक्स लिखा गया है, राइट हैंड साइड में भी एक वर्टेक्स लिखा गया है। इन केस ऑफ पॉजिटिव फंक्शन व्हाट हैपेंस इफ दिस इज ट्रू वर्टेक्स। ट्रू वर्टेक्स मींस एक इज पहले लिख लेता हूं फिर बताते हैं। ट्रू वर्टेक्स, ट्रू वर्टेक्स का मतलब ये है कि ट्रू वर्टेक्स का मीन टर्म है ना। तो यहाँ पे जो अगर x1 इक्वल टू b2, x2 इक्वल टू b1, x3 इक्वल टू b0 पुट करेंगे तो फंक्शनल वैल्यू 1 होना चाहिए। इफ द फंक्शनल वैल्यू इज 1, इफ फंक्शन assumes वैल्यू 1, तो दैट इज ट्रू वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का जो वेरिएबल्स जो है 0 0 0 0 0 1 0 है ना, तो उसको आप फंक्शन में पुट कर दीजिए वैल्यू को। एंड इफ द फंक्शन assumes 1 वैल्यू for that vertex, then we will call the vertex is true vertex। or if the function assumes 0 value, तो we will call it is a false vertex। so vertex true vertex हो सकता है, false vertex हो सकता है। तो true मतलब functional value will be 1 corresponding to that vertex, function has 1 value। false vertex means corresponding to the vertex the function will assume 0 value। ठीक है, अब देखिए in case of positive function, if this is true vertex and this relation holds true, then it will automatically imply that this vertex will also be true vertex। मतलब ये है कि ये वर्टेक्स है, ये समझिए कि राइट हैंड साइड वाला कॉम है, तो ये कॉम वाला अगर ट्रू है तो इससे ज्यादा जितना है सब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी आपका पॉजिटिव फंक्शंस के लिए होते हैं। इन केस ऑफ पॉजिटिव फंक्शन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इन xi फॉर ऑल i, फॉर ऑल i है ना। तो इस टाइप का अगर फंक्शन है तो उसमें दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू। प्रॉपर्टी को समझिए कि कंसीडर टू वर्टिसेस एंड दिस पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू, देन b2 b1 b0 अगर ये ट्रू वर्टेक्स है तो इससे बड़ा है ना, मतलब a2 a1 a0, it will also be true vertex है ना, it will also be true vertex। एक प्रॉपर्टी हुआ हो गया। उसी तरह से आपका उसके लिए एक क्या है, बोलो कुछ भेजे हैं क्या? ओके अब फॉल्स वर्टेक्स के लिए देखिए, मान लीजिए a2 a1 a0 और एक वर्टेक्स b2 b1 b0 and this relation holds। Now it is suppose this is false vertex, if this vertex is false vertex, तो क्या होगा, ये जो b2 b1 b0 it will automatically be false vertex, also be this will also be false vertex। मतलब ये है कि
पहला में देखिए, अगर B2 B1 B0 ये ट्रू वर्टेक्स सबको पता है, तो इससे जो बड़ा वाला है जितना भी वर्टेक्स है वो सब ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, ट्रू वर्टेक्स। और फॉल्स वर्टेक्स के केस में मान लीजिए बड़ा वाला ही फॉल्स है, A2 A1 A0, सो इट विल ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि ए भी फॉल्स है। यहाँ पे ट्रू है, इट विल इम्प्लाई दिस थिंग। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स वर्टेक्स है तो इसके नीचे वाला, इससे छोटा B2 B1 B0 दे विल बी फॉल्स वर्टेक्स। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको ठीक से समझना है। ए पॉजिटिव फंक्शन के लिए ट्रू होता है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी आप उसमें डिस्कशन किया हुआ किताब में भी, ये देखना है। तो यही से एक्चुअली क्लू मिलता है, वो जो हम लोग बता रहे थे कि थ्रेशोल्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करने के तरीके जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि यू हैव टू सॉल्व 2 टू द पावर n इनइक्वालिटीज। जो फंक्शन दिया गया है, हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रूथ टेबल बना रहे थे, एंड फॉर ईच रो एक एक इनइक्वालिटी लिख रहे थे। इफ फंक्शन इज 1, इफ द फंक्शन assumes 1 वैल्यू, तो हम लोग क्या कहते हैं, वेटेड सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, और 0 है तो लेस देन t, वेटेड सम इज लेस देन t। फिर जैसे 3 वेरिएबल फंक्शन में आपको 8 टू द पावर 3 इनइक्वालिटीज मिलेगा, और उसमें से हम इफ देयर एग्जिस्ट द वैल्यूज ऑफ w1 w2 w3 एंड t सेटिस्फाइंग ऑल द इनइक्वालिटीज, तो फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन। तो उस दिन ये भी बताए थे कि हाउ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज। अब वो क्लू यहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें कुछ वर्टेक्स है, ट्रू वर्टेक्स, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। कुछ फॉल्स वर्टेक्स ऑटोमेटिकली देखिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि वी नीड नॉट कंसीडर ऑल ट्रू वर्टिसेस। व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर ओनली मिनिमल ट्रू वर्टिसेस, मिनिमल ट्रू वर्टिसेस। तो मिनिमल ट्रू वर्टिसेस मींस, क्योंकि मिनिमल वाला अगर ट्रू है तो उससे बड़ा वाला जो मैक्सिमल, उससे जो बड़ा होगा ऑटोमेटिकली होगा। तो यहाँ पे क्रूशियल जो हमारा ट्रू वर्टिसेस वो मिनिमल ट्रू वर्टिसेस, ये हमको कंसीडर करना है। और मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस को कंसीडर करना है। वी नीड नॉट कंसीडर ऑल द मिन टर्म्स, वी शुड कंसीडर द मिन टर्म्स। वर्टेक्स क्या है, मिन टर्म है, एक एक मिन टर्म। तो मिनिमल ट्रू वर्टिसेस एंड मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टर्म आपको बार बार यूज होगा, मिनिमल ट्रू वर्टिसेस एंड मैक्सिमल। वी शुड कंसीडर ओनली दीज वर्टिसेस। रिमेनिंग वर्टिसेस और मिन टर्म्स जिसके लिए आप इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 2 to the power n inequalities, suppose we have number of inequality two vertices p. P is the number of two vertices, and q is the number of false vertices. P is the number of minimal two vertices, and q is the number of maximal false vertices. P is the number of minimal two vertices, q is the number of maximal false vertices. Then you need to solve pq inequalities, है ना। तो डायरेक्ट मेथड में 2 to the power n इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करना पड़ा था। अब क्या है कि पी क्यू इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो अगर 2 to the power n जनरली ये इससे बड़ा होता है, 2 to the power n और पी क्यू, है ना। तो पी क्यू, तो इसीलिए आपको यू कैन डिटरमाइन whether the function is threshold function or not by solving less number of inequalities. You need not rigorously solve all the inequalities. क्या करना है, पी क्यू इनइक्वालिटीज, मिनिमल ट्रू वर्टिसेस निकालना है, मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस निकालना है, और वेटेड सम corresponding to minimal two vertices must be greater than weighted sum corresponding to maximal false vertices. तो एक फंक्शन दिया गया है, तो पहले उसका मिनिमल ट्रू वर्टेक्स निकालना है, फिर मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस निकालना है। वो जो वर्टेक्स है वहां पर आप हमको वेटेड सम निकालना है। रिक्वायरमेंट क्या है कि वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमल टू वर्टिसेस, जितना भी है पी टू वर्टेक्स को यदि एक हो, वो मल्टीपल भी हो सकता है, हम लोग देखेंगे, है ना। तो वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमल टू वर्टिसेस मस्ट बी ग्रेटर देन द वेटेड सम कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस। वो जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमको we can determine whether the function is threshold function or not, ठीक है।
लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है पॉजिटिव फंक्शन के लिए, बार बार रखिए, पॉजिटिव फंक्शन के लिए ही ये ट्रू है। अगर मिक्सचर टाइप का है तो उसके लिए ट्रू नहीं है रिलेशन। दिस रिलेशन क्लियरली एप्लीकेबल टू पॉजिटिव फंक्शंस ओनली। ठीक है, उसको अगर मिक्सचर है तो क्या करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखिए थोड़ा क्यूब, तो हमने एक क्यूब ड्रा कर लेते हैं, 1 मिनट। तो जो एन क्यूब ड्रा किया ना, क्यूब ड्रा करिए फिर हम बताते हैं। चलिए क्यूब ड्रा कर लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को पहले ड्रा किया होगा तो ठीक है। तो ये क्यूब क्या, ये जो क्यूब है it can be used to represent one three variable function, any three variable function, x1 x2 x3, function of x1 x2 x3। now अब उसको थ्रेशोल्ड एलिमेंट का जो हम लोग डिस्कस किए उसको याद करिए। उसमें क्या था कि इफ द वेटेड सम w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 है ना, ए वेटेड सम, इफ दिस इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड, तो क्या होगा, आपको ट्रू वर्टेक्स मिलेगा। मतलब फंक्शन विल एस्यूम वन वैल्यू f इक्वल टू 1 इफ दिस वेटेड सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू t, है ना। द फंक्शनल वैल्यू विल बी 0 इफ द वेटेड सम इज लेस देन t। तो लेट अस सी इक्वल टू t, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन का इक्वेशन है। एक प्लेन जो है क्यूब को इसे काट करेगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन में इसे एक ड्रॉ किया, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इन केस ऑफ पॉजिटिव फंक्शन व्हाट हैपेंस कि ग्रेटर देन इक्वल टू टी का मतलब क्या हुआ, इफ द ट्रू वर्टिसेस आर ऑन द प्लेन और अबव द प्लेन, है ना। जो ये जो इस साइड में जो है, इस साइड में आपको ट्रू वर्टेक्स होंगे, ट्रू वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स थियोरेटिकली ये इसको टच भी कर सकते हैं, है ना। और फॉल्स वर्टेक्स किधर है, उसको अपोजिट साइड में, इधर प्लेन का नीचे। मैं थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, अब दिखाई पड़ेगा कि नहीं हमको नहीं पता। ये फॉल्स वाला इधर है। तो ये जो आपका प्लेन है, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन, मैं इसी तरह ड्रा कर रहा हूँ। ये जो प्लेन है, इफ दिस प्लेन काट्स द क्यूब, है ना, तो ट्रू वर्टेक्स किधर है, ऑन द प्लेन और अबव द प्लेन। मैं यहाँ पे अबव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन है, और बिलो द प्लेन आपका फॉल्स वर्टेक्स होना चाहिए। और ये देखिए, ये जो W1 W2 W3 एंड T जो वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर, इट विल डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द प्लेन। क्योंकि प्लेन किस तरह का होगा, इट विल डिपेंड ऑन W1 W2 W3 एंड T, है ना। तो मान लीजिए क्यूब को, मान लीजिए कोई प्लेन एक एग्जिस्ट करता है जो ट्रू वर्टेक्स को फॉल्स वर्टेक्स से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट। तो जो प्लेन का जो कोफिशिएंट्स W1 W2 W3 जो कोफिशिएंट्स है थ्रेशोल्ड कांस्टेंट जो टर्म है ना, तो वही आपका वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर है। और ये जो सेपरेट करने का, इसी को लीनियर सेपरेबिलिटी कहते हैं। मतलब इन केस ऑफ थ्रेशोल्ड फंक्शन यू कैन सेपरेट देम। मतलब ऐसा नहीं कि जिस साइड में ट्रू वर्टेक्स है उस साइड में फॉल्स भी वर्टेक्स चला गया, या फॉल्स है उधर ट्रू भी है, तब जो क्या होगा थ्रेशोल्ड फंक्शन नहीं।
मतलब यह क्लियर कट एक दिखाई पर एक प्लेन एग्जिस्ट कराना चाहिए। प्लेन का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग W1 W2 W3 एंड T। सो थ्रेशोल्ड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि इफ द एग्जिस्ट ए प्लेन which cuts the cube in such a manner that two vertices will lie on the plane or above the plane and false vertices will lie below the plane, है ना। तो अगर इस टाइप का प्लेन एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन। और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लीनियरली, वी विल कॉल द फंक्शन इज लीनियरली सेपरेबल। लीनियरली सेपरेबल मतलब ट्रू वर्टेक्स और फॉल्स वर्टेक्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। एक पार्टीशन एक प्लेन है जो प्लेन ट्रू वर्टेक्स को सेपरेट कर रहा है फ्रॉम फॉल्स वर्टिसेस, ठीक है। अगेन एक डिस्कशन पॉजिटिव फंक्शन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये तो क्यूब हो गया 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए। अगर n वेरिएबल है तो उसमें भी एक क्यूब अब इमेजिन करिए जिसका टू द पावर n वर्टेक्स है, और वो क्या होगा आपका n क्यूब, n डायमेंशनल क्यूब होगा। अब उसको तो हम ड्रा कर नहीं सकते, इसलिए 3 वेरिएबल लेके ड्रा कर रहे हैं। तो उसको इमेजिन आप कर सकते हैं, ड्रा कर नहीं कर सकते। तो n डायमेंशनल क्यूब होगा जिसके टू द पावर n वर्टेक्स है। तो वहां पर भी एक प्लेन हाइपर प्लेन, if there exists one n-1 dimensional hyperplane which cuts the n dimensional cube in such a manner that two vertices will lie on the plane or above the plane and false vertices will lie below the plane, below the hyperplane, है ना, then we will say the function is linearly separable। तो फंक्शन अगर यूनिट है साथ में ए वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, देन द फंक्शन विल बी थ्रेशोल्ड फंक्शन। तो फंक्शन को थ्रेशोल्ड होने के लिए दो प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है, इट मस्ट बी यूनिट फंक्शन और इट मस्ट बी लीनियरली सेपरेबल। अच्छा, इसके बाद प्रैक्टिकल बात मैं बताऊं। अगर मान लीजिए आपको 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया है, तो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि डिटरमिन वेदर और नॉट द फंक्शन इज थ्रेशोल्ड फंक्शन और नॉट। तो 2 वेरिएबल में डायरेक्ट मेथड वो ज्यादा आसान है, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 इनइक्वालिटी जो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपको मिनिमल टू वर्टेक्स, मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स ये सब करने का उतना जरूरत है ही नहीं। 3 वेरिएबल फंक्शन में 8 इनइक्वालिटी, वो भी आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। टू द पावर 3 मतलब 8 इनइक्वालिटीज, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी मिनिमल टू वर्टेक्स, मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स करने का जरूरत पड़ता नहीं है। इट इज अप टू यू। हो सकता है कि इस मेथड में और सा एफिशिएंट सा टाइम बचेगा, बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। लेकिन 2 और 3 वेरिएबल में तो ठीक है, डायरेक्ट मेथड काम कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा वहां पर भी नहीं है। एक 2 वेरिएबल का केस में 4 इनइक्वालिटी सॉल्व करना है डायरेक्ट में 2/2, 3 वेरिएबल में 2/3 8 इनइक्वालिटी, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 से ज्यादा हो गया, जैसे 4 वेरिएबल, अब डायरेक्ट में दोनों 16 इनइक्वालिटी, हो सकता है कि इसमें मिनिमल टू वर्टेक्स 2 है, मैक्सिमम 1 है, तो 3 इनइक्वालिटी सॉल्व करके आपका हो जाएगा, है ना। तो 4 एंड अबव, तो उसके लिए जो है यही मेथड आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट मेथड में कर नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे मतलब इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। कर तो पाएंगे लेकिन दैट विल बी उतना टाइम सेविंग नहीं है। तो अब जो यही मेथड यूज करना है। इस मेथड में क्या है, फर्स्ट यू कन्वर्ट द गिवन फंक्शन इनटू पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव फंक्शन को आप देखिए वो थ्रेशोल्ड है कि नहीं, पहला है ना। पॉजिटिव फंक्शन अगर थ्रेशोल्ड हो गया तो जो पहला दिन वो जो प्रॉपर्टी बताए थे, क्या प्रॉपर्टी, कि वो जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन आपको याद होगा कि वो जो था पहला प्रॉपर्टी, जो V1 एक वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर मान लीजिए कि ये है W1 W2, वो जो वेट पॉजिटिव करने वाला था Wn एंड थ्रेशोल्ड फंक्शन T, है ना। और इसका इनपुट्स जो है x1 x2 x3 ये था, xj मान लीजिए xn, यहाँ पे मैं एक wj भी बीच में लिख देता हूँ। तो वहाँ पे था ना कि द सेम फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड विद दिस वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर
W1 W2 और यहाँ पे माइनस WJ कर दीजिए WN और यहाँ पे एडजस्ट करना है T माइनस WJ और यहाँ पे वेरिएबल क्या लेना पड़ेगा, ये हो गया है वेरिएबल क्या होगा XJ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मतलब X1 X2 और जो इनपुट XJ है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ए प्रॉपर्टी से हम इस प्रॉपर्टी का वहां पे यूज करके ओरिजिनल फंक्शन के लिए वेट थ्रेशोल्ड वेक्टर हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हेलो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हेलो, एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मिनिमल टू वर्टेक्स मैक्सिमम फॉलोस वर्टेक्स तो हो गया। हाउ टू डिटरमाइन मिनिमल टू वर्टिसेस एंड मैक्सिमल फॉलोस वर्टिसेस, ये वाला पार्ट आप लोग ठीक से देख लीजिए कि किताब में नहीं दिया हुआ है ना। किताब में आपको ये वाला पार्ट नहीं दिया, मैं बता एक मेथड। मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ कि f इक्वल टू x1 x2 प्लस x3 x4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट फाइंड वही मिनिमल टू वर्टिसेस, मिनिमल टू वर्टिसेस, इसको कैसे निकालते हैं, ये है बात है वर्टिसेस। मैं आपको बताऊं एक किताब में नहीं है, आपका मिलेगा नहीं, इसको जरूर मैं जो बताऊं इसको सुनिए, नोट कर लीजिए, अदरवाइज यू विल बी, आप किताब पढ़ेंगे आप मिनिमल टू निकालना कैसे निकालना ये नहीं पता है ना। इसको सुन लीजिए, किताब वाला समझ में आएगा नहीं, किताब में था वो डिस्कस किया है बट नॉट, तो फॉलो करना मुश्किल है। तो मैं इसको बताऊंगा कि यू कैन इजीली फाइंड इट आउट यूजिंग केमैप, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको केमैप में प्लॉट करिए सबसे पहले, आप लोग भी ड्रा करिए तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो मिनिमल टू वर्टेक्स उसी तरह से मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स भी निकलेगा, पहले मिनिमल टू वर्टेक्स हम निकालने की कोशिश, सॉरी। सो फर्स्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग इसको केमैप से केमैप प्लॉट कर रहे हैं कुछ। आप केमैप का देखिए, दो वेरिएबल इस साइड में ले लीजिए x1 x2 और ये ले लीजिए x3 x4, ठीक है। तो होता है 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये जो सेल है, ठीक है ना, पहले ये देखिए, एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ चार वेरिएबल है, सॉरी फंक्शन ऑफ x1 x2, मतलब एमएसबी पोजीशन में मैं उसको रख रहा हूँ x1 को। तो इसको अगर आप ये जो सेल का जो मिन टर्म होता है ना, बेसिकली दिस सेल रिप्रेजेंट्स कौन सा मिन टर्म, 0, वो नंबर को भी हम लिखते हैं। ये कौन सा होगा, 0 0 0 1 1, ये क्या होगा 2, है ना, ये 3, इसको भी लिखिए, ये होगा 4 5, दिस वन इज 6 7, ये है 8 9 10 11,
फिर क्या हो जाएगा ये 12, 13, 14 एंड 15। ये नंबर समझ में ये जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे केएमएम में, ये मिन टर्म है बेसिकली। x1 x2 x3 x4 उसको करके आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक जो सेल है इस सेल उसका x1 x2 x3 x4 वो वैल्यू जो आ रहा है बाइनरी में उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दैट नंबर इट रिप्रेजेंट्स द मिन टर्म m0 m1 m2 ओ ये। अब फंक्शन को प्लॉट करिए x1 x2 मतलब कहाँ पे प्लॉट होगा देखिए। तो x1 x2 मतलब ये हुआ, चार वन ही हो जाएगा 1 2। हेलो, x3 x4 इसको प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। अब हमको मिनिमल टू वर्टिसेस निकालना है। ये करने के बाद जैसे आप केएमएफ का रूल के हिसाब से करते हैं क्वाड ऑक्टेव बनाते हैं ना, वो बनाइए। तो देखिए एक तो जो है यहाँ पे एक क्वाड ए बन जाएगा, उसको बना लीजिए। और ए क्या है, एक क्वाड ए बनेगा, जो सिंप्लीफिकेशन रूल है उसी हिसाब से ही बना लीजिए। अब एक क्वाड में क्या है कि हमको मिनिमल टू वर्टेक्स, तो देखिए इसमें वन मतलब इट रिप्रेजेंट्स टू वर्टेक्स। जो आपके क्यूब को इमेजिन करिए, तो जहां पे वन है केएमएफ का एंट्री, इट रिप्रेजेंट्स द टू वर्टेक्स। तो इसमें देखिए जो नंबर है, जो नंबर आपका लिखा है इसमें मिनिमम कौन सा है, 3 आउट ऑफ 3 7 15 11, इसमें मिनिमम क्या है 3 है। तो 0001 सॉरी 0011 3 मतलब 0011 ये आपका एक मिनिमल टू वर्टेक्स हुआ। यहाँ पे दो क्वाड है ना, तो दो मिनिमल टू वर्टिसेस होंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा क्वाड के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर को देखिए 12 13 14 15, मिनिमम कौन से 12 मतलब x1 x1 1 0 0, ठीक है। सो दिस फंक्शन हैज टू मिनिमल टू वर्टिसेस 0 0 1 1 एंड 1 1 0 0। तो ये जो दोनों है ये मिनिमल टू वर्टिसेस है। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए पॉजिटिव फंक्शन आपने लिया, आप लोग भी पॉजिटिव फंक्शन ही आप लीजिएगा, वो डिस्कशन में पॉजिटिव ही आएगा, हम बताएंगे कि इसे करना मिक्स है। तो क्या करना है, फंक्शन को सीधा सीधा केएमएम में प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद जो भी आप सिंप्लीफिकेशन रूल लगाते हैं उसको रिड्यूस करने के वही लगाइए, मतलब यू हैव टू फॉर्म पेयर क्वाड ऑक्टेव जो भी है ना। और उसमें से क्या है कि मीन टर्म का नंबर को सामने रखिए और एक एक को टेकअप करिए कॉम्बिनेशंस को, है ना। उसका जो मिनिमम है उसको 3 7 मतलब आउट ऑफ दिस, एक्चुअली ये इसका मीनिंग ये हुआ कि आउट ऑफ द टू वर्टिसेस मतलब 3 7 15 11, इसमें से जो मिनिमम है ना, वो 3 वाला है 0 0 1। और आउट ऑफ द वर्टिसेस मतलब ए मिन टर्म 12 13 14 एंड 15, उसमें मिनिमम क्या है 12 वाला मिनिमम। तो इस तरह से आपको मिनिमल टू वर्टिसेस निकालना है। एग्जैक्टली सिमिलर मैनर आप मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स के लिए क्या करना है कि जहां पे फंक्शन के वैल्यू 0 हो रहा है उसको हमको कंसीडर करना है, ठीक है। जैसे आप देखिए इसी फंक्शन का हम मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स कैसे निकालना वो बताते हैं। तो 0 देखिए, सॉरी फंक्शन 0 वैल्यू कहाँ पे अस्यूम करेगा, तो एक 0 यहाँ पे होगा, 0 इसको फिल कर दीजिए 0 0 0 0 0 0। तो अभी जो है हम मैं इसको लिख देता हूं, ये जो हम लोगों ने निकाले ये है मिनिमल टू वर्टिसेस, उसको मैं टू वर्टिसेस द फंक्शन इज टू मिनिमल टू वर्टिसेस एंड इसका डिस्कस खत्म। अब मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस का बात करते हैं। तो टू फाइंड आउट मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देंगे जो सेल्स कंटेनिंग जीरोस। अब यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है कि इसमें सिंपलीफिकेशन, जैसे एक क्वाड आप बनाइए, अब यहाँ पे मिनी मैक्सिमल फॉल्स, तो इसमें से जो मैक्सिमम है मतलब ये जो चारों आपका ट्रू वर्टेक्स फॉल्स वर्टेक्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 1
4 एंड 5, तो मैक्सिमल कौन सा हुआ, मैक्सिमम कौन सा हुआ, 5 वाला है। तो क्या होगा, 0 1 0 1, दिस इज वन मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स, फॉल्स वर्टेक्स। ठीक है, एक ये हो गया। फिर देखिए क्वाड आप बना सकते हैं, जैसे ए ले लीजिए इधर का और इधर का 2। ठीक है, तो ये जो क्वाड इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इधर है देखिए 0 4 2 6, तो 6 इज आउट ऑफ दिस 4, 6 विल बी मैक्सिमम वन, है ना। तो 0 1 1 0, दिस इज अनदर मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स। फिर देखिए चार कोने में जो कॉर्नर का 4 है वो एक क्वाड बन जाएगा, एक ए 2 3 4। अच्छा, एक इधर भी है 9 वाला भी 0 है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो चार कॉर्नर में से मिनिमम कौन सा, मैक्सिमम कौन सा है, 0 2 8 और 10, तो 10 मैक्सिमम हुआ, मतलब 1 0 1 0, एक मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स है। और ये होगा क्या कहते हैं, इधर का ऊपर का और नीचे का 2 0 ले लीजिए, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 9, दैट इज 1 0 1 0 0 1। तो ये देख लीजिए, मतलब प्रोसेस है। तो मिनिमल टू वर्टिस और मैक्सिमल फॉल्स वर्टिस निकालने का तरीका हमने बताया। इस फंक्शन में देखिए आपका मिनिमल टू वर्टिस कितने, 2 है, और मैक्सिमल फॉल्स वर्टिस कितना है, 4 है। तो 2 इंटू 4, 8 इनइक्वालिटी सब का सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि फंक्शन थ्रेशोल्ड फंक्शन है कि नहीं। अगर डायरेक्ट मेथड में करेंगे तो यू हैव टू डील विद 16 इनइक्वालिटीज, क्योंकि 4 वेरिएबल फंक्शन है, x1 x2 x3 x4, यू हैव टू सॉल्व टू द 4 इनइक्वालिटीज, मतलब 16 इनइक्वालिटीज। लेकिन मिनिमल टू वर्टेक्स मैक्सिमल वर्टेक्स इस मेथड से आप करें तो आपके 8 इनइक्वालिटी सॉल्व करके बता सकते हैं कि फंक्शन इज, क्योंकि 8 रिडंडेंट है इस प्रॉपर्टीज में। वो जो था मिनिमल टू वर्टेक्स, क्योंकि मिनिमल टू वर्टेक्स कंसीडर कर रहा हूं, मतलब उसका नीचे वाला सब अपने आप सेटिस्फाई होगा, मैक्सिमल टू वर्टेक्स। अब मिनिमल टू वर्टेक्स मतलब ये है कि अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो उसको ऊपर वाला जितना है, पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन जिसमें होल्ड करता है, तो वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के सहारा में आप कुछ, हम लोग ने एलिमिनेट कर दिए कुछ वर्टेक्स को, कुछ ट्रू वर्टेक्स कुछ फॉल्स वर्टेक्स, है ना। तो एज ए रिजल्ट क्या है कि नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, है ना, इसमें कंप्यूटेशनल बर्डन कम है। इट इज द डायरेक्ट मेथड में कंप्यूटेशनल बर्डन स्पेशली एन जितना बढ़ेगा वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया मिनिमल टू वर्टेक्स और मैक्सिमल फॉल्स वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। ये मेथड को थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि किताब में डायरेक्ट इसका डिस्कशन है ही नहीं। अब इसके बाद बस एक थोड़ा क्या है, सॉरी, तो इसमें से देखिए हम लोग जो डिस्कस किए, ये पहले ये जो फिगर 7.1 ये कल डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल दोनों कल डिस्कस किए थे, है ना। आज जो कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस इसको भी बताए थे लास्ट क्लास में। आज जो हम लोगों ने एलिमेंटरी प्रॉपर्टीज, ये भी लास्ट क्लास में बताए थे, 2 प्रॉपर्टी, है ना। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया ये सिंथेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड नेटवर्क। तो यहाँ पे ये देखिए कि यूनिट फंक्शंस जो हम लोग बताए थे उसका डेफिनेशन क्या है ना। एक कॉन्जंक्टिव मतलब वही एसओपी पीओएस फॉर्म, अब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये भी हम लोगों ने बताए, ये 3 क्यूब, है ना। इसमें देखिए कोई फंक्शन का जो है वो दिया है, यही फंक्शन हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, क्यूब वाला ये पार्शियल ऑर्डरिंग दिखा रहे हैं,
है ना। और ये जो थ्योरम दिया इसका प्रूफ तो हमने भी नहीं किया, यही थ्योरम बताए, थ्योरम 7.1 जो हमने बताया, इसका प्रूफ दिया गया है, प्रूफ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम पहले आप इसको समझ में आ जाए तो फिर कभी बता देंगे, ये आप अपने आप भी समझ जाएंगे। ठीक है, ये इसका यूज होगा। फिर यहाँ पे अभी जो फंक्शन हमने लिया था ये वही फंक्शन है जिसका हमने बताया कि हाउ टू फाइंड आउट मिनिमल टू वर्टिसेस एंड मैक्सिमल फॉल्स वर्टिसेस। ये जो बॉक्स के अंदर जो एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल में एक्चुअली उसका डिस्कशन नहीं है, वो कैसे निकाल रहा है वो आपको हमने मैप का मेथड सहारा लेकर के बताए। फिर लिनियरली सेपरेबल ये जो डिस्कस करते हैं लीनियर सेपरेबल वही प्रॉपर्टी 7.11 देखिए इक्वल टू टी के ये हाइपर प्लेन n माइनस 1 डायमेंशन हाइपर प्लेन का इक्वेशन है। ये अगर n डायमेंशन स्पेस को क्यूब को n डायमेंशन क्यूब को काट करता है तो वही चीजें इन्होंने बताया लीनियर सेपरेबिलिटी क्या चीज है ना। फिर एक छोटा सा एक प्रॉपर्टी ये देखिए एवरी थ्रेशोल्ड फंक्शन इज यूनिट बट एवरी यूनिट फंक्शन इज नॉट थ्रेशोल्ड, मतलब इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। तो इसको है उसका प्रूफ भी उन्होंने थ्योरम का दिया है, आप स्टेटमेंट को याद रखिए, प्रूफ भी हो जाएगा। अभी प्रूफ हमने नहीं डिस्कस किया बट स्टेटमेंट को हमने ले लिया है। फिर आपको क्या करना है, हाँ इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में है ना एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल को डिस्कस कर देंगे, एक आज तो नहीं नेक्स्ट क्लास में, तो आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास 1 घंटे का लगेगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसको पढ़ जरूर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिएगा। जितना हमने डिस्कस किया नाउ यू विल बी इन ए पोजीशन टू रीड द चैप्टर कंप्लीटली, आप पूरा कर सकते हैं है ना। लेकिन एक एग्जांपल हम बता देंगे, अब समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज हमने बताई है लेकिन एक एग्जांपल एक डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास कब रखें, नेक्स्ट सैटरडे। तो ठीक है, हेलो आप लोग है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, तो क्लास आज यही खत्म करते हैं। आप लोग को उसको पढ़िएगा, जो आप लोग पढ़ पाएंगे, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। जो पीडीएफ फाइल हमने भेजा है उसको जरूर पढ़िए, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल वो हम डिस्कस कर देंगे, बाकी सब हो गया है इस चैप्टर का। ठीक है, ठीक है, उसको आप लोग रीडिंग एक बार पढ़िए पढ़िए, और कोई दिक्कत होगा तो हमको नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके, थैंक यू।